अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। voicepeak.net के साथ मैं हूं हैदर कलीम। हमारे साथ आज हमारी खसूसी मेहमान हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर, जो कि चेयरपर्सन हैं करंदाज की। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आप हमें इनिशियली जो है प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट करंदाज कि करंदाज बेसिकली क्या इनिशिएटिव है, ये क्यों बना था? कुछ अर्से पहले खरंदाज वॉज स्टैब्लिश्ड। ये एक जॉइंट वेंचर है। डिफिट जो यूके गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, ये ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम है डिफिट। तो एक तो दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू डिफिट, और दूसरा बिल मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन इज़ अनदर पार्टनर इन डेवलपमेंट। और ये कुछ अर्से पहले इस्टेब्लिश हुआ था। आई हैव जॉइंड करंदाज का बोर्ड लास्ट ईयर आफ्टर माई रिटर्न फ्रॉम ओवरसीज। ठीक। तो डॉक्टर साहब, अभी ड्यूरिंग द पेंडेमिक, नो, a very interesting development occurred at your end, जो आपने और आपकी टीम ने इसको मिल के लॉन्च के नाम से। तो what is it about? What's the new initiative about, and why was it launched initiated in Pakistan? Women Ventures. जी, देखिए, करंदाज कुछ अरसे से एक प्रोग्राम ऑपरेट कर रहे थे। अमंग्स द सेवरल प्रोग्राम्स जो उनके हैं, उनमें से एक जो प्रोग्राम था वो वुमेन्स चैलेंज फंड कहलाता है, और वो कुछ अरसे से था वेयर दे वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एंटरप्रेन्योर women who had the real business acumen and had the entrepreneurship skills, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में एंगेज थे। तो हम उनको फाइनेंसिंग सपोर्ट दे रहे थे ऑफ डिफरेंट टाइप्स। Now we have taken this one notch up. It's called Women Ventures Fund, which doesn't mean that we stop supporting what we were doing. We continue to support what we are doing, but we have been trying to look at कि हम किस तरह इसको scale up करें. Idea being कि पाकिस्तान में actually women entrepreneurship बहुत low है relative to the rest of the world. तो किसी तरीके से हम औरतों को फ़ायदा पहुंचाएं, बिकॉज़ आपको पता है हमारी औरतें जो हैं, दे आर नॉट वर्किंग इफ़ेक्टिवली इन द फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है जो बहुत ही टॉप नॉच विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको तो क्रेडिट फिर भी मिल जाता है फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, और जो बिल्कुल लो स्पेक्ट्रम पे है, लो एंड पे है, those basically rely on their family resources and they are dealing with small business, very minor businesses. ये हम missing middle को target कर रहे हैं, and this women venture fund is supporting women in different businesses where they are comfortable operating, और हम उन्हें न सिर्फ financial, we actually give them a proper loan. We are happy to give them equity if needed, but also we give them business development support, um, and all the technical support that they may need. So, what kind of gender divide in the entrepreneurship sector or the field have you witnessed? What kind of gender divide, what kind of gender dynamics have you witnessed, which compelled the organization and the initiative to come into being? What are the stats? देखिए, basically it's a man's world in Pakistan, but if you were to look at the documented figures, only 13.5 million women are employed in Pakistan, which amounts to 25% of adult female population. So the number is very low relative to the South Asian neighbors, who have been able to have a bigger breakthrough on involvement of women in economic activities. And ये इसके बावजूद
women have been able to get more educated gradually over the years, और जो proportion of women in Pakistan with no education actually has declined from 2/3 to little more than half of the adult female population over the last say 2 decades or so. Um, Over 50% of the women are in unpaid work. So this is quite a major gender divide. If I were to show you, reveal to you some of the male numbers, but everybody knows that, knows those numbers more graphically. दूसरा, अगर हम लेटेस्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को देखें 2018, वो पाकिस्तान को रैंक करता है एज वन ऑफ द वर्स्ट performing countries where less than 7% of managerial positions are held by women. इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर को देखें तो उसमें अगर आप CEOs का प्रोपोर्शन देखें वो भी बहुत लो है. अगर आप ये देखें कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ women आर इन द बोर्ड डिस्पाइट द SECP रिक्वायरमेंट नाउ कि आप कम से कम एक औरत को अपने बोर्ड पे रखें. उसके बावजूद बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो टोटली मेल डोमिनेटेड हैं और रेशो is extremely low, somewhere in the range of 3%. So gender gap तो बहुत severe है. तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये कोई हमें मतलब it's great that such initiatives are coming to place, but is this, do you believe, the permanent solution to what you described? Because जो अभी आपने सिचुएशन सामने रखी है और वैसे भी जेंडर गैप रिपोर्ट आती है, UN की दीगर रिपोर्ट्स आती हैं, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से सर्वेज होते हैं, तो क्या ऐसे इनिशिएटिव्स गिविंग एक्सेस टू फाइनेंस, बिकॉज दिस वोंट बी it's practically impossible, I believe. You can also correct me if I'm wrong, कि ये बहुत एक कम तादाद में जो है वो ये इनिशिएटिव कवर तो करेगा, बिल्कुल किसी तरह से एक्सेस तो मिलेगी चीज़ों के लिए, लेकिन वैसे ओवरऑल हम कैसे देखते हैं, मतलब इसके लिए तो हमें किस किस्म की चेंज की ज़रूरत है? स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत है, पॉलिसी में चेंज की ज़रूरत है, कि कौन से पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जिसकी तरफ हम मतलब जा सकते हैं? A good question. Of course, there are multiple factors. आपको पता है कि औरतों के लिए जो हमारा overall social, cultural, religious perspectives हैं, they do require a sea change. But और भी मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे there are social taboos, there are cultural inhibitions, but वो progress फिर भी कर पा रहे हैं. उसकी वजह यह है कि there has been an affirmative action by the governments and the civil society and the private sector, where they have recognized that trying to get more and more women involved in the economic activity is very beneficial for the economic output and economic growth. There are massive empirical studies worldwide जो शो करती हैं जिन मुल्कों में ज़्यादा औरतें पार्टिसिपेट करती हैं इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उन मुल्कों में प्रोडक्टिविटी भी बेहतर है और जो GDP है उसमें भी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाती है. और कुछ काउंटर फैक्चुअल स्टडीज़ हैं इंटरनेशनली जहाँ billions of dollars could be contributed if we actually harness women in the right direction in economic activity. तो ये सारे फैक्ट्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा इकोसिस्टम जिसे कहते हैं ना, वो ठीक नहीं है औरतों के लिए. अब जाहिर है हम जिस सिस्टम में हैं उसमें हमें इनोवेटिव अप्रोचेस ढूंढनी है औरतों को. औरतें हमेशा have been missing. आपको याद होगा एक वर्ल्ड बैंक की मेजर स्टडी थी, the missing population of the world is actually women, जो नज़र भी नहीं आती हैं आपको. तो पहले तो we do need a good gender data gap analysis और औरतें कहाँ हैं, किस किस्म के काम करती हैं,
how can you harness them into take them out of informal into the formal sector, और हमारे लीगल सिस्टम क्या है, कैसे हम इनकरेज कर सकते हैं, कैसे हम रिकग्नाइज करें कि गिविंग वुमेन right to work is actually a human rights issue. जो United Nations जहाँ से I have recently come, कि it's very critical that the women are given equal opportunity. तो ये recognize करना, फिर government को बहुत सारी schemes करनी है. अब let me come to the crux of it. जो सस्टेनेबल अप्रोच है औरतों को इकोनॉमिक एक्टिविटी में लाने की, वो ये है कि आप उनको एक्सेस टू फाइनेंस दें. तो पाकिस्तान में ये ज़रूर हुआ है कि वी हैव बीन एबल टू गेट women access to finance, but the proportions of access to finance is very low overall for both male and female, but in case of women it's exceptionally low as I see. जो चीज़ है आपको banking system, banks are not going to go for the low end or are going to take risk excessively for women. अब तो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. तो इसके लिए हुकूमत ने शुरू किया था माइक्रो फाइनेंस को प्रमोट करना. इनफैक्ट मैं जब गवर्नर होती थी पहले सेंट्रल बैंक की इन मिड 2000, तो हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया था टू प्रमोट माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, जिसमें हमने कहा कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपग्रेड कर दिया जाए इनटू माइक्रो फाइनेंस बैंक, ताकि वो पूरी होलिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करें, सेविंग्स भी रेज करें और लोन्स भी अलाउ करें एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए. तो वो ग्रो करता रहा है. और फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नादरा का डेटाबेस सिस्टम तैयार किया, जिसमें जो आईडी कार्ड सारी औरतों को दिए गए, आईडी कार्ड्स और आइडेंटिफिकेशन, जिसके बेसिस पे अब क्रेडिट वो ले सकती हैं और ये ट्रैक भी कर सकते हैं. फिर गवर्नमेंट ने अपनी पेमेंट सिस्टम को भी डिजिटाइज कर लिया है, गवर्नमेंट टू पीपल पेमेंट सिस्टम. तो इससे आहिस्ता आहिस्ता women are coming into different walks in life and different economic activities. लेकिन जैसे मैंने एक बात कही कि banks are not going to be able to reach women um, in larger proportion. So you have to really look at financial inclusive policies and financial inclusive modalities. और फिर ये करंदाज का प्लेटफॉर्म इज़ अ वेरी इनोवेटिव प्लेटफॉर्म. तो अगर आप हमारे वेब पे जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप विमेन वेंचर्स फंड या विमेन चैलेंज फंड को जब आप क्लिक करेंगे बटन, तो यू विल सी कि जो एप्लीकेशन जो हम रिक्वायर करते हैं वो बड़ी सिंप्लीफाइड है. एंड वी ऑब्वियसली help people also in filling, and then we genuinely work through with the women entrepreneurs to figure out इनकी business कैसी है, viable है, where are the gaps, where can we give them business support. तो ये banks नहीं कर पाती हैं hand holding because they look at the transaction cost. We are not looking at the transaction cost, we are looking at the dividends, and we have made a mark in the women entrepreneurship field. जी. तो मेरे इससे बहुत कुछ दो तीन और सवाल छोटे छोटे निकले हैं इस बात से कि पहला तो ये कि हाउ सक्सेसफुल वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ गोइंग टुवर्ड्स माइक्रो फाइनेंस एंड फर्म्स एंड देन डेवलपिंग देम इनटू अ बैंक, बिकॉज असल मसला तो फाइनेंस का तो बिल्कुल है ही है, बट देन देयर इज एन अदर इशू कि उस फाइनेंस का उन्होंने करना क्या है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द फाइनेंस, उसके आगे फिर एक और पूरी दुनिया है मसाइल से बड़ी हुई. तो वो कितना कामयाब तजुर्बा रहा है. और दूसरा ये कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन व्हेन वी से कि हमने फाइनेंस करना है, बिकॉज देयर वाज अनदर स्कीम लॉन्च बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट
जो पीपी की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आया था। उसमें तो ये था कि चलो सपोर्ट करना है, लेकिन यू नो द होल आइडिया वाज कि किसी तरह फाइनेंशियल सपोर्ट हो ताकि मतलब उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए। बट यू नो उसमें इनकम सपोर्ट ज़रूर हुई, लेकिन उसमें भी हम नहीं देख पाए। फिर माइक्रो फाइनेंस वाले में आपको लगता है कि हैज़ देयर बीन लाइक enough data to support the argument that it was the right thing to do, or were we supposed to do something else? देखिए, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, there are quite a few questions, so I'm going to जी जी। separate those questions. First of all, let's deal with the government program. Benazir Income Support Program obviously was a very successful program, but it was intended to provide cash transfer to um, poor women at the end of the day. So there's a lot of work that went into identification system bane. In fact, it started at a time when I was in the country at the central bank. We worked a lot. यही जो नादरा का सिस्टम है इसको इस्टेब्लिश किया गया। फिर उसके बाद औरतों को इनकरेज किया गया कि आप बैंक अकाउंट्स खोलें, and then you went ahead and of course asked the banks कि आप चार्ज ना करें इन अकाउंट्स पे, बिकॉज बैंक्स चार्ज करती थी फॉर ओपनिंग अप अकाउंट्स। और फिर ये कैश ट्रांसफ़र डिस्ट्रीब्यूट हुए बेस्ड ऑन दी poverty consideration to the poor women. Uske baad, now the program has been scaled. You fast forward it and bring it to today, and government of Pakistan has now scaled that program. It's called the Ehsaas program, और इसका भी मकसद यही है to give cash transfers, to give enough cash to the needy women to be able to manage their own household and impact. लेकिन अगर आप देखें एक औरत के साथ पूरा हाउस होल्ड होता है, तो these amounts are definitely a welcome, but do they give reach all the poor women? Absolutely not. Do they meet the demands of their household fully? No, but they are a welcome step, and the government is very proud that they have a social safety net program, which has been tried and tested, and which has been also evaluated by outsiders, and they have commended the government on that. Now, what we are talking about in microfinance is a very separate business line. Yeah, this is not cash transfer. This is a commercial transaction. Basically, obviously small operations करती हैं microfinance institutions, yeah, but it's a very established business in Pakistan. In fact, जब मैं पहली दफ़ा आई थी as governor in the country, तो ये it reached only 500,000 women or so, which is a very small number compared to where we are today. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी कि आप किस कैटेगरी को टारगेट करेंगे। तो ये माइक्रो फाइनेंस लॉ बनाया गया, फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज किया गया कि आप स्केल करें, और स्केल करने के लिए उनको बैंक्स के का स्टेटस दिया गया। दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। फिर उन्होंने अलायंसेस की हैं इन इंस्टीट्यूशंस ने with basically telecom business, with mobile operators, और पाकिस्तान में हमने फिर branchless banking लेकर आए थे. In fact, we had gotten technical assistance from DFID again at that time जबकि मैं गवर्नर थी, और उस टेक्निकल असिस्टेंस के बेसिस पे हमने दो तीन चीज़ें की. एक, हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया. फिर दूसरा, वी ट्राई टू प्रोवाइड क्रेडिट एनहांसमेंट मैकेनिज्म टू माइक्रो फाइनेंस. वी प्रोवाइडेड देम द लिक्विडिटी. तो इस तरह ये माइक्रो फाइनेंस बिजनेस टुक ऑफ, और आज इट्स बिकम अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. अगर सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो कि ज़्यादातर डील करती हैं औरतों के मसाइल से, इफ़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर टू गिव a lot of legal protection, and if we had effective support for women
एंटरप्रेन्योर्स और विमेन बेनिफिशरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस, तो मेरे ख्याल में ये और भी एक्सपेंड कर जाएगा एक्सेस टू क्रेडिट। और अगर आप उससे पूछें इज दिस अ सस्टेनेबल अप्रोच टू प्रोवाइडिंग फंडिंग, दिस इज़ दी सस्टेनेबल अप्रोच टू प्रोवाइडिंग फंडिंग। एक मसला है कि कभी कभार interest rates are high because the cost of delivery of microfinance is pretty high in our country, and that is why if the public sector were to partner with the private sector to lower the cost of the delivery, um, collection mechanisms are still complex। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, औरतें बहुत conscientious होती हैं, they are very good borrowers, they're good savers also. So they've been doing a good job, and a large number of the clientele of microfinance is women. ठीक। और एक मेरा बस आखिरी सवाल, उसके बाद हम आपसे इजाज़त भी लेंगे कि अब हम एक पेंडेमिक से डील कर रहे हैं, तो हाउ हैज़ द पेंडेमिक अफेक्टेड the program, and how has the pandemic affected the beneficiaries, the upcoming beneficiaries, the beneficiaries to be, या फिर जो उससे पहले प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी औरतें, उनको कैसे अगर पेंडेमिक ने मुतासिर किया है या किया भी है या नहीं? आर देयर लाइक एनी सक्सेस स्टोरीज, या फिर हम उसमें कोई हुआ है मामला खराब? जी, जाहिर है the the amount of support that different agencies can give during the this period of pandemic is quite complex. अब ये है कि इस वक्त everybody is looking at the pandemic itself, so इसमें जाहिर है it's very hard to figure out कि pandemics से कितना impact हुआ है, slow down हुई है microfinance business का। I anticipate, like the banking sector, microfinance businesses have also been impacted. By what level, unfortunately, अभी ये study नहीं हुआ है, but business slowdown हो जाती है, risks grow हो जाते हैं in this situation. So of course it is impacting, the pandemic is impacting financial intermediation, be it of small and medium or माइक्रो बिजनेसेस। लेकिन जैसा आपने सुना होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पेंडेमिक से जो इफ़ेक्टेड लोग हैं उनको रिलीफ दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अब जो हमारा विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, बिजनेसेस जो कि हर्ट हो रही हैं, जिनकी बिजनेसेस डिसरप्ट हो गई हैं, उनको सपोर्ट दी जा रही है। सो बेसिकली हमारी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है करण दास का, उससे हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं अपनी तरफ से कि स्टडी करें जो हमारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको हमने सपोर्ट दी है, फिर उनको इंटरेस्ट फ्री वर्किंग कैपिटल दिया जाए, उनको सैलरी पेमेंट के लिए फाइनेंसिंग दी जाए, उनको इन्वेंट्री फाइनेंसिंग के लिए दी जाए। सो इट्स ऑलमोस्ट कम टू अबाउट 300 मिलियन दिस पेंडेमिक सपोर्ट जो हम दे रहे हैं। सो हमारी कोशिश ये है कि वाइल बिजनेसेस पेंडेमिक से हिट हुए, तो हम वी ट्राई टू फाइंड आउट इन व्हाट वे वी कुड सपोर्ट बिजनेसेस। और हमारा चूँकि शेयर काफ़ी हाई है और सब्सटेंटिवली हम सपोर्ट कर सकते, तो एज आई सेड वी हैव गिवन close to about 287 million COVID support. ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर शमशाद अख्तर, अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे डॉक्टर शमशाद अख्तर ने वो काम उसका एक बार फिर से पहले से भी कर रही थी, अब उसको एक और मरहले तक पहुंचाया है, जिसमें ख़वातीन को पाकिस्तान में जो रोज़गार के या कारोबार के या ज़रूरियात ज़िंदगी पूरे करने के लिए, या वैसे जिस तरह मर्दों को मौक़े मिलते हैं या मिलते रहे हैं तारीख़ी तौर पर, वो नहीं मिलते थे, तो उस कदम की उस तरफ कदम बढ़ाया है कि औरतों को भी उसी की तरह जो है वो मौक़े मिलें और वो भी उसी तरह ज़िंदगी में आगे जा सकें। तो हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।
हैदर कलीम voicepk.net लाहौर से।